member of Cryptology Research Society of India, ISI Kolkata. He has contributed to more than 125 papers published in various international journals and conferences. Sir has been listed among the world's two top 2% top scientists in 2020 and 2021. He has completed 8 DST, SERB, and AICTE Tech IP funded projects and has published 2 patents. Sir is the series editor of Springle book series Studies in Smart Technologies. He is an associate editor of the International Journal of Swarm Intelligence, IJSI, published by InterScience. He has also edited many special issues of the reputed journal. His primary area of interest is nature inspired optimization technologies. Today, I will speak on the topic open source tool for enhancing research output. Welcome you, sir. Thank you, sir. Please continue. Thank you, ma'am, for the nice introduction. Thank you, sir. In today's session, we will cover the open access document editing tool that is highly required, I can say a basic step for a research. जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज लेटेक ओके एंड that will I will discuss in today's this session. So I'm sharing my screen here. My screen is visible. Yes, sir. Yeah. So you may see here we face generally the problems in formatting the our articles, how we have to manage the references. You know, we have we gone through hundred of references during the research and literature survey. We can say we manage the references properly, but at the time of citing the references, selecting the references for the record and for the research article, it we feels it difficult in managing the references. Okay, so it is very easy in LaTeX. Formatting is very easy. Okay, figure management, table management, list of figure, list of tables, all these things are, and you know, the library of the LaTeX is very vast designed. Okay, so you may get any information, just you have to type in Google whatever problem you are facing, there is a solution. There is a solution. LaTeX is a solution. So it is pronounced like LaTeX. It is pronounced just like LaTeX. Okay, lay and tech, and it is supported by nearly by all the publishing corporations like IEEE, SCM, Elsevier, Springer, Wiley, etc. So there are, if you are writing in a 1 or 2 page document, Microsoft Office is better. You have to choose that one. But if you are writing a report, a research article, a thesis, for that LaTeX is add-on advantages, many advantages than the your basic uh, editors, including your Office. Okay, so this graph shows that as the complexity of writing a document increases, the usability of LaTeX is the choice of LaTeX is increases. Okay, जैसे जैसे आपका कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता जाएगा, LaTeX विल बी वेरी यूजफुल. तो आपको अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनर्शिया ब्रेक करना. इनर्शिया ब्रेक करने का मतलब समझते हैं आप लोग? यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग. मतलब जब तक आप सभी जैसा कि मुझे बताया गया है कि यू ऑल आर दी रिसर्च स्कॉलर्स. ओके, सो रिसर्च स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? रिसर्च स्कॉलर मतलब होता है डूइंग समथिंग नोवल थिंग, समथिंग न्यू कंट्रीब्यूशंस, है ना, इन द रिसर्च. यू हैव टू डू some new contributions in the research.
तो ये आपको करना है। तो न्यू कंट्रीब्यूशंस के लिए आपको न्यू लर्न करना है, सबसे पहले हमें लर्न करना है, फिर देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट वन। अगर आप में लर्निंग कैपेबिलिटी है देन यू मे डू समथिंग न्यू। सो ये लेटेक जो आपको सीखना है, लेटेक जो मैं इसमें डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले कि आपको इनर्शिया ब्रेक करना होगा। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि पता नहीं क्या चीज है ना, वी Sir, डोंट PPT नो। not visible. या आई नो पीपीटी नॉट एलिजिबल। मैं पीपीटी से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इनर्शिया ब्रेक करना होगा किसी भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। तो अब लेटेक के अंदर हमें इसको स्टार्ट, जैसे साइंस के आप में से कई सारे स्कॉलर्स साइंस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए तो रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए लेटेक से बेटर अभी तक कोई भी एडिटर अवेलेबल नहीं है इसके लिए। और इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेटेक के यूज करने के लिए। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वी हैव टू use only two softwares. One is for the reference management and another is for the editor. So here I am showing you, and it is a practical oriented session. यहाँ पर आप जो भी है वो प्रैक्टिकल से ही सीख सकते हैं लेटेक। इसको आप थ्योरेटिकल में अगर इसको सीखना चाहे तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। इट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। until and unless you learn how to write a report, thesis, paper using latex, you cannot learn. You cannot learn. Only by doing you can learn. You can learn. Only by doing you can learn. Okay, and for that you have to remove your inertia. जब तक आपका हेजिटेशन रिमूव नहीं होगा यू कैन नॉट लर्न इट। ओके, सो इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ द थिंग्स विल बी edited using the latex. Okay, the first thing is the learning by doing. Learning by doing का क्या मतलब होता है? एक्चुअली आपके लिए मेरे पास है करके सीखना। It means practically execute the actions. एक्सीलेंट। आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। Thank you, sir. बिल्कुल सही बोला है आपने। अब देखिए मैं आपको इसको देखिए, आप मेरे पास मुझे मिला है एक वीडियो एंड इट इज, आई थिंक इट विल बी ऑडिबल। बेस्ट ऑफ लक। आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। Yes, sir. आ रही है। नो चांस यार, आई डोंट थिंक आई विल गेट दिस जॉब। जिंदगी रोज हमारी क्लास लेती है, नर्सरी से स्कूल, फिर कॉलेज और अब यहाँ। कितना देखा दूसरों की आंखों से, कितना जाना किताबों के पन्नों से। सोचो कितना सीखा हमने जिंदगी से और कितना खुद से। जिंदगी पर अपनी पकड़ बनाई, कभी कभी मुंह की भी खाई। सपनों के बादल फुगाए और फाइट मारकर ऊपर आए। टेढ़ी उंगली से काफी काम चलाया, पर सच्ची मेहनत से भी रंग खिलाया। रास्ते जितने ऊंचे नीचे थे उन्हें कुछ भी करके सीधा कराया। कभी डर के पीछे नहीं हटे, अपने फोकस से कभी नहीं बटे। छोटी मोटी खुशियों को उंगलियों पे सजाया, दोस्तों के लिए ये सर हाथ बढ़ाया, हर बंधन को अपनाया। जिंदगी रोज हमारी क्लास लेती है, नर्सरी से स्कूल, फिर कॉलेज और अब यहाँ।
सोचो कितना देखा दूसरों की आंखों से और कितना जाना किताबों के पन्नों से, क्या क्या हासिल किया जुगाड़ करके। सोचो कितना सीखा हमने जिंदगी से और कितना खुद से। खुद से सीखो। So we have to learn by ourselves. Okay, now I am Yes, coming to sir. the topic. Yes, learning by doing. Okay, so in LaTeX we require only two softwares. My slide is visible. Yes, Yes, it's sir. visible now. Okay, so one is the we require two softwares. Okay, so how you have to get it? One is the Mictex. Okay, you just have to open your Google. If anybody is working on the laptop or desktop, one can do this simultaneously. You have to only download your Mictech. Just type download Mictech. Okay, you will get this, the official website of the Mictech. It is open source software, Mictex. Then you may download it here for every type of operating systems: Windows, Mac, Linux, Docker. Okay, for all types of OS, you have a version of Mictech. You have to click this button. In this way, you may download it, and you have to install software while clicking it. It's a very simple to install the Mictech. Okay, it is open source. There is no license required. So one software is Mictech. Another is I am writing it here. Okay, in chat box. Okay. I cannot write in the chat box. Either please make me host. Okay, I have no access to write in the chat box. No problem. So you just note down it. You have to download this Mictech. आपको ये Mictech डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है, ओपन सोर्स है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको लेना है, दैट इज द जेब्रेफ। ये Mictex बेसिकली क्या है? Mictex इज ए कंपाइलर, एक तरीके से एडिटर इसको बोल सकते हैं। इट इज द एडिटर और कंपाइलर ऑफ द लेटेक, एडिटर और कंपाइलर ऑफ द लेटेक। ओके, अनदर टूल जो हमें रिक्वायर्ड है वो है जेब्रेफ। You just write down जेब्रेफ डाउनलोड and you will get the official website of the जेब्रेफ। ये भी ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। यू जस्ट गो हियर, डाउनलोड, क्लिक ऑन द डाउनलोड जेब्रेफ, और इस तरीके से आप जेब्रेफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने मिकटेक डाउनलोड कर लिया है, आपने जेब्रेफ डाउनलोड कर लिया है। ऑल थिंग इज ओके नाउ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपको एक इसका जो कंपाइलर का एक एडिटर भी साथ में, वैसे तो मिकटेक इज इटसेल्फ अ कंपाइलर एंड एडिटर बोथ, इट विल वर्क जस्ट लाइक अ कंपाइलर एज वेल एज द एडिटर, लेकिन आपका एक सिंपल एक यूजर फ्रेंडली कंपाइलर भी अवेलेबल है, जो है आपका विन एडिट, जो विंडोज के लिए होता है, केवल जिसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक वगैरह में। एक्सक्यूज मी सर, अब चैट बॉक्स ओपन है, यू कैन राइट सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो एक द अनदर थिंग इज विन एडिट डाउनलोड। ओके, फ्रॉम हियर यू मे डाउनलोड द विन एडिट। इट इज ए लाइसेंस्ड, ओके, ये फ्रीवेयर नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा फ्रीवेयर से। यू नीड नॉट रिक्वायर्ड अ लाइसेंस हियर। सो मैं यहाँ पर आपको तीनों के लिंक चैट बॉक्स में डाल के भेज रहा हूँ।
अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। विनएडिट, ओके, देन जेब्रेफ, this is the JBref download link here। आपके तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं आपको सबसे पहले सिस्टम के अंदर, देन मिकटेक्स। ओके, आप अगर इन तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका 30% वर्क लेटेक्स सीखने का कंप्लीट हो चुका है, 30%। अब हमारे पास 70% बचता है, 70% केवल इसकी सेटिंग करना है। सेटिंग कर लिया तो यू विल बी रीच्ड एट द लेवल ऑफ 50%। ओके, तो आपको आप ये तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हटा देते हैं हम। यस, नाउ यू हैव टू ओपन दिस विनएडिट। जब आप विनएडिट को सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरीके से नजर आता है, वो इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर जो है नजर आएगा आपको। विनएडिट, ये विन एडिटर है बेसिकली, जिसके अंदर आप अपना जो भी रिसर्च आर्टिकल है, जो भी थेसिस है, जो भी रिपोर्ट राइटिंग है, ये सारा जो वर्क करेंगे आप इस एडिटर में कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है टेक्स्ट मिक टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। विन एडिट इज ऑप्शनल। ओके, कंपलसरी क्या है हमारा, जेब्रेफ और आपका मिकटेक, ये दो कंपलसरी है। ठीक है, अब आपको मान लो कि कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है। आपको मैं पहले बता दूं कि रिसर्च आर्टिकल के लिए कुछ जो साइंस से रिलेटेड जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं ऐसे जो केवल और केवल लेटेक्स टेम्पलेट के अंदर ही, है ना, रिसर्च आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेटेक्स टेम्पलेट के अंदर ही रिसर्च आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अंदर जैसे ये वाली जो पीपीटी बनाई हुई, ये वाली जो आपको नजर आ रही होगी, ये भी जो स्टार्टिंग किया था हमने जिससे, ये लेटेक्स के अंदर ही बनी हुई है पूरी पीपीटी। इसके अंदर आप जो इक्वेशंस लिखते हैं वो अलग से मतलब ब्यूटीफाई होकर आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सिंबल्स हैं उनको आप बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में पहले मैं एक सिंपल सा रिसर्च आर्टिकल किस तरह से इसमें लिखा जाता है मैं आपको पहले वो बताऊंगा। उसके बाद हम थ्योरी के लिए आगे मूव करेंगे कि किस तरीके से हमें रिपोर्ट एंड थीसिस राइटिंग पे काम करना है। तो अभी क्योंकि आपका मेन टारगेट होगा, यू आर जस्ट अटेंडिंग योर रिसर्च वर्क, रिसर्च कोर्स वर्क। ओके, सो फॉर दैट you have to go through first you have to learn how to write the research articles, documents class। okay, here you just write it here, है ना। जो भी आपको आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसकी हेल्प जो फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड करेगी आपको लिखना क्या है। और हर जितने भी पब्लिशर्स हैं, जैसे अगर IEEE आप यहाँ पर देखते हैं तो IEEE के अंदर ये IEEE ट्रांस इस तरीके से क्लास फाइल बना के रखते हैं। हर पब्लिशर ने अपनी क्लास फाइल बना रखी है। ओके, और जैसे ही आप इस क्लास फाइल को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया IEEE ट्रांस, ओके, और जैसे स्प्रिंजर की क्लास फाइल होती है SV जोड़ 3, ऐसे कई सारी और भी स्प्रिंजर के भी कई डिफरेंट जर्नल्स अवेलेबल हैं। IEEE के भी डिफरेंट जर्नल्स अवेलेबल है, और हर जर्नल की एक स्पेसिफिक क्लास फाइल होती है। इसी तरह से अगर आप थीसिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो थीसिस की भी क्लास फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। इवन जैसे कोटा यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट चाहता है कि वो अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको केवल क्लास फाइल सबमिट करनी है। कौन सी फाइल देगा, ये वाली फाइल बनाकर वो अपने रिसर्च स्कॉलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो फिर आपको फॉर्मेटिंग की चिंता नहीं करनी है, ऑटोमेटिक आपकी थीसिस उस इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी जिस इंस्टीट्यूट की क्लास फाइल आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इस क्लास फाइल के अंदर हर चीज पहले से ही डिफाइंड है। चाहे वो आपका स्पेसिंग हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, आपकी नंबरिंग स्टाइल्स हो गई, आपकी रेफरेंसेस की स्टाइल्स हो गई, है ना। इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी इस क्लास फाइल के अंदर डिफाइंड है। आपको फिर कोई टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिपल ग्वालियर से PhD की थी तो हमने हमारी क्लास फाइल खुद ने जनरेट कर दी थी। उसके बाद आज तक वही क्लास फाइल वहाँ पर यूज आ रही है। उसके अंदर मतलब सीधा जो यूजर होता है
जो ऑथर होता है वो केवल सिंपल उस क्लास फाइल को यहाँ डॉक्यूमेंट क्लास में यूज करता है और अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, सिंपल जैसे एक टेस्ट फाइल है, यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट क्लास फाइल लिया है, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, ये बाय डिफॉल्ट क्लास फाइल है ना। ये तो आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल लिखना है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास फाइल है। क्लास फाइल का मतलब होता है .cls, इसके अंदर सारे फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप ऑलरेडी इस फाइल के अंदर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप जो क्लास फाइल से उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सिंपली ले रहे हैं कि एक आर्टिकल क्लास फाइल है, ठीक। इसके अंदर मालूम है मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करनी है, तो यहाँ पर आप देखिए यूज पैकेज एक कमांड है, इसके साथ लिखा हुआ है AMS मैथ। AMS मैथ मीन्स इट इज ए पैकेज फॉर मैथमेटिकल इक्वेशंस। मैथमेटिकल इक्वेशंस का फॉर्मेटिंग किस तरह की आएगी, किस तरीके से उसके इंस्ट्रक्शंस वर्क करेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर इस पैकेज के अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी। यहाँ में बस हमें इस पैकेज को यूज करना है, इस पैकेज को हमें यूज करना है और ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें जब भी जैसे कोई भी अगर कोई पैकेज यहाँ पर नहीं भी है और आप इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो ये सिस्टम को जब भी हम रन करेंगे ये इंटरनेट से उस पैकेज को ऑटोमेटिक डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर देगा बैकग्राउंड में, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्लास फाइल लिखेंगे हम, सॉरी कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उस डॉक्यूमेंट की क्लास फाइल, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सबसे पहले जो भी लिखना है तो डॉक्यूमेंट की क्लास, डॉक्यूमेंट्स क्लास, हमने जैसे यहाँ पर लिया आर्टिकल, ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, ये सबसे मेन स्टेप है। उसके बाद बिगिन, कोई भी अगर आपको अब जब भी कुछ किसी को लिखना है, अब आपको जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है तो बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट, बिगिन डॉक्यूमेंट्स एंड एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले किया जाएगा। इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं कोई भी, क्योंकि न्यू फाइल हमने क्रिएट की यहाँ पर। सेव करने के बाद ये देखो जहाँ जो लास्ट में इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये क्या आते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये इसके कंपाइलेशन प्रोसेस है। कंपाइलर को चेक करता है कि ये प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है नहीं है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस मिसिंग तो नहीं है, अगर मिसिंग होता है तो एरर जनरेट करेगा। अभी यहाँ पे कितनी एरर्स आ रही है, एरर्स 0, वार्निंग्स 0, बेड बॉक्सेस 0। हमें वार्निंग्स एंड बेड बॉक्सेस को भी नहीं देखना है, हमें मेन देखना है कि एरर नहीं आनी चाहिए। जब तक एरर आएगी हमारा जो डॉक्यूमेंट है दैट विल नॉट बी कंपाइल्ड और नॉट जनरेटेड। अगर यहाँ कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ये आउटपुट आएगा इसका, हेलो वर्ड। ये लेटेक्स से जनरेट होकर आउटपुट आया है, हेलो वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जनरेट होता है, इसके अंदर जो है वो विजिबिलिटी हम विजिबल कर सकते हैं कि किस तरीके से ये होगा। अभी जैसे इसके अंदर अगर मुझे देखना है, यहाँ पर आप टाइटल लगाइए, आपके आर्टिकल का टाइटल क्या है, तो यहाँ स्लेश करके अगर TITLE, ये देखिए स्लेश करके आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे वो आपके हेल्प बॉक्स में आ जाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स अवेलेबल ऑलरेडी उससे। जैसे हाउ टू लर्न लेटेक, ओके। देन इफ आई विल कंपाइल इट नाउ, तो अभी ये बिल्कुल भी वही यहाँ पर क्या है देखिए आप, केवल हेलो वर्ड, वो जो टाइटल है वो विजिबल नहीं हुआ है। फॉर देट अगर हम टाइटल को बिल्ड करना चाहते हैं तो कमांड होता है यहाँ पर मेक टाइटल, मेक टाइटल के बाद उसको यहाँ पर आपका जो उसका आपका आर्टिकल है, हाउ देन उसकी डेट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को, हाउ टू लर्न लेटेक, ओके। एंड देन द डेट ऑफ द आर्टिकल, जिस दिन आपने डेट को लिखा है ना। इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप इन सबको कि किस तरीके से हमें इस आर्टिकल को लिखना है, वो आपको अभी स्लाइड एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले आपको मिक का जो कंसोल है, जैसे आप यहाँ सर्च बार में मिक डालेंगे पूरा कंसोल खुल के आ जाता है। आपको इस कंसोल को ओपन करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखने के। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट एडिटर से, जैसे टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट एडिटर से भी इसको लिख सकते हैं। उसके लिए फिर आपको विन एडिटर की जरूरत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके, ये टेक्स्ट एडिटर है। अब यहाँ विन एडिटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्प के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें यहाँ विन एडिटर और दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ विजिबल है। अगर आपको कोई कुछ भी चीज इंसर्ट करनी है, जैसे आपको इक्वेशन लिखनी है, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर यूजर फ्रेंडली वे में अवेलेबल है। जबकि जो मिकटेक्स एडिटर है उसके अंदर आपको खुद से सब कुछ चीजें टाइप करनी होगी। बाकी दोनों में बड़ी, जैसे इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें जैसे आप कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में आपको विजिबल हो क्या जाता है कि किस तरह का डिस्प्ले होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पर एडिटिंग करते जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, जो आपका ये डिस्प्ले वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होता चला जाएगा, वो भी साथ के साथ जो है वो अपडेट होता चला जाता है इसके साथ के साथ। तो इसकी ये कम यूजर फ्रेंडली है, ओके, बट इट विल नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर, और उसके लिए हमें विन एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो मैं आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाह रहा था, दैट इज आई थिंक क्लियर नाउ टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट एन रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल के लिए जनरली हम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम क्या यूज करते हैं? वन इज द फॉर्मेट, ओके, किसी भी रिसर्च आर्टिकल का फॉर्मेट। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल के लिए एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ IEEE का, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास IEEE ट्रांजेक्शन की क्लास फाइल है। अगर हमने क्लास फाइल ले ली है यहाँ पर, ओके, देन ओनली आई हैव टू कंपाइल। ये देखिए यहाँ पे कंपाइल, ये जो PDF T लिखा हुआ है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, PDF टेक्सटिफाई, PDF लेटेक, लेटेक PDF, ओके। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन होता है PDF टेक्सटिफाई, ये PDF जनरेट भी करता है, साथ के साथ कंपाइल के साथ PDF भी जनरेट करता है। और जो यहाँ B ऑप्शन है ये बेसिकली बिबटेक्स के लिए होता है। बिबटेक्स का मतलब होता है कि ये आपका बिब्लियोग्राफी जनरेट करता है। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंसेस, अगर आप जो फाइल इंक्लूड करोगे उसके लिए रेफरेंसेस जनरेट करके दे देगा। तो मैं जैसे IEEE का एक पेपर, एक टेम्पलेट लिया हुआ है मैंने, उसको मैं कंपाइल करके आपको बताता हूँ। यहाँ कंपाइल हो रहा है, जितनी भी अगर कोई एरर भी आती, जो भी आती है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अभी इसके अंदर कोई एरर नहीं, 0 एरर आई है इसके अंदर, इसलिए कंपाइल होके आ गया है। हमने IEEE ट्रांजेक्शन के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस जर्नल की क्लास फाइल को लिया है, इसलिए इसके उसके फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आया है। दिस इज द टाइटल, दिस इज ऑथर इन्फॉर्मेशन। ये होता है हमारे आर्टिकल में, सबसे पहले आएगा हमारे पास टाइटल, ओके, देन द नेम ऑफ द ऑथर्स, देन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स, देन इंट्रोडक्शन, ओके, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, corresponding author, then some diagram, tables, results, flow, okay, then we have tables, okay, graph, equations, these are the various tables, and at last we have references। ये हमारी सीक्वेंस होती है, ठीक है, किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर। तो वन बाय वन करके हम सीखेंगे कि किसी भी लेटेक में इन सब इस सीक्वेंस में रिसर्च आर्टिकल को लिखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, दिस वन, ओके। यहाँ पर अभी हमने किया है कि टाइटल, सबसे पहले हमने टाइटल लिखा है। टाइटल लिखने के बाद नेम ऑफ द ऑथर्स, ओके, नेम ऑफ द ऑथर्स। आप जब भी लेटेक लिखना स्टार्ट करें तो उसमें हर थोड़ी देर बाद आपको कंपाइल करना है, थोड़ा छोटा सा मॉडिफिकेशन के बाद भी आपको उसको कंपाइल करना है। हर छोटे मॉडिफिकेशन के बाद आपको उसको कंपाइल करना है।
ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है। अगर मैं बताऊं इसमें देखिए आप, हमने जैसा भी डिस्कस किया था, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट क्लास, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। देन यू हैव टू राइट बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी होगा इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट, इसके बीच में आपको पूरा रिसर्च आर्टिकल को लिखना है। देन मेक टाइटल, मेक टाइटल कमांड क्या करेगा, जो भी आप टाइटल आपके रिसर्च आर्टिकल टाइटल बनाए उसको कंपाइल करने के लिए मेक टाइटल कमांड का यूज किया जाता है। कंपाइल करके डिस्प्ले करा देगा, तो यहाँ पर स्लैश टाइटल, ये आपका टाइटल है। तो जो भी टाइटल आपको लिखना है वो इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। स्लैश टाइटल, जैसे इसमें है वर्कशॉप ऑन हाउ टू लर्न लेटेक, ऑथर्स का नाम फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी ऑथर्स का नाम दे दिया यहाँ पर, ABC XYZ PQR, ओके। और अब मैं इसको अभी क्योंकि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पर कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट दे देते हैं, मैं भी रेंडमली कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिगिन एब्स्ट्रैक्ट, इसके बीच में आपको, अगर आपको जैसे रिसर्च आर्ट, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और अब कंपाइल करके बताता हूँ आपको। आपके पास क्या आता है इस तरीके से, कि कुछ तो रेफरेंसेस ऑलरेडी हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सी फाइल जनरेट होती है प्रैक्टिकल सेशन में। एक अब मैं सारी फाइल्स डिलीट कर रहा हूँ इसमें से आपको। देखिए हमारे पास इसमें 3 फाइल्स हैं। ये तो एक इमेज है जो मैं भी काम में लूंगा, आपके लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज अ जेब्रेफ, जो मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेस रेफरेंसेस को मैनेज करेंगे। दिस वन, ओके। इसके अंदर देखिए अभी कुछ रेफरेंसेस को मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, कैसे हमें इसके अंदर एंट्री करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देन दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये वाली एडिट फाइल है ना। तो हमारे पास 3 फाइल है अभी, टेस्ट एंड एड, ये 2 ही फाइल है मेन। इसके अंदर रेफरेंसेज है रेफ के अंदर, और टेस्ट के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये वाला, ये जो फाइल है ये वाली डॉट टेक्स्ट फाइल है ये, ओके। तो अब अभी जो मैंने इसको कंपाइल किया है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने किया, इसको मैं दोबारा कंपाइल करके बताता हूँ आपको। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर कई सारी टेम्परेरी फाइल जनरेट हो जाएगी। अभी हमारे पास केवल 2 फाइल हैं, REF रेफरेंस के लिए, रेफ एंड TS टेस्ट के लिए, ओके। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पर कंपाइल करने के बाद कई सारी टेम्परेरी फाइल जनरेट होती है। कंपाइल हो गया, एरर 0, एक सेकेंड, दिस वन, टाइटल आ गया हमारे पास, ओके। ऑथर्स की डिटेल आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये, क्योंकि हमने वहाँ एब्स्ट्रैक्ट के रूप में इसको यूज नहीं किया, तो एब्स्ट्रैक्ट एंड रेफरेंसेज, हमने बिब्लियोग्राफी यूज की है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से रेफरेंसेज इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गया है, ठीक है। अब हम इसको स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर इसको रेफरेंस के लिए एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लिखते हैं, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसा, ओके। ये बिगिन एंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है, तो ये रेफरेंस यहाँ पर जो है ये क्या हो गया है आपका एब्स्ट्रैक्ट। मैं अभी रैंडम वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, रैंडम गार्बेज इसके अंदर, ओके। ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, ओके। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो स्लैश आप यहाँ से सेक्शन बना सकते हो। अब इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया एक सेक्शन पेपर के अंदर। एक तो सबसे पहले तो क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट, देन लेट्स सपोज अब हम एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे आप कितने भी सेक्शन इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन आपने बनाया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ अभी, है ना। यहाँ आपने क्या लिखा है, स्लैश सेक्शन, और सेक्शन का नाम दिया है आपने इंट्रोडक्शन। चाहो तो आप इसको लेबल भी दे सकते हो। लेबल मतलब इस सेक्शन का नाम क्या दे रहे हो आप, है ना, इसको इंट्रो कर दीजिए आप, है ना।
सेक कोलन इंट्रो। ये क्या काम आएगा, इस सेक्शन का नाम देना। ये आपको जो क्रॉस रेफरेंसिंग करते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग समझते हो, जब भी आपको इस सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा कि उस सेक्शन में मैंने ये चीज बता रखी है, तो वहां पर आप इस सेक्शन को इससे आइडेंटिफाई करोगे, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस लेबल मतलब इस सेक्शन को आपने नोमेनक्लेचर कर दिया, इस सेक्शन को आपने एक नाम दे दिया है। अब मैं इसको इमीडिएटली वापस कंपाइल करके बताता हूँ कि किस तरह से नजर आता है। जीरो एरर है, इस तरीके से सेक्शन नजर आएगा। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये तो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट, ओके, और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ये सेक्शन ऑटोमेटिक इसने नंबरिंग ले ली है। फर्स्ट सेक्शन है, इसका नाम हमने क्योंकि अपने वहां पर इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, और ये हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट किया है, टेक्स्ट को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। ओके, थोड़ा मैंने और टेक्स्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। इस सेक्शन का नाम मैंने दिया है सेक कोलन इंट्रो। ये क्योंकि लेबल है तो ये वहां डिस्प्ले में नहीं आता है। तो इस तरीके से अब देखिए सब सेक्शन बनाना है। ये तो मैंने क्या बनाया, सेक्शन। ओके, अब मुझे अगर सब सेक्शन क्रिएट करना है, बहुत सिंपल है, स्लैश सब सेक्शन। सब सेक्शन का अबाउट द प्रॉब्लम। अब इसका भी मैं लेबल बना सकता हूँ। लेबल रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि ये विजिबल तो होता नहीं है। सब सेक अबाउट, मैंने ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर वापस पेस्ट कर दिया है। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट अगेन। ये बनने की मैंने यस, ठीक है जी, ये हमारा आर्टिकल है। नाउ वी हैव अ इंट्रोडक्शन एंड दिस इज द सब सेक्शन। यहाँ ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं करनी है आपको। 1.1 अबाउट द प्रॉब्लम, ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द सब सेक्शन, इट इज अ सेक्शन, इट इज सब सेक्शन, इट इज अ सेक्शन, इट इज सब सेक्शन। ओके, नाउ हम एक और सब सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सब सेक्शन, इस तरीके से आप कितने भी लेवल तक जो है वो गो डाउन हो सकते हो। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, हर बार जब भी आप स्लाइटली चेंज करें, अगर कंपाइल कर लेंगे, और इसको वर्ड से भी कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। ओके, और अब सबसे बड़ी बात है, मैं कोई चिंता नहीं करनी फॉर्मेटिंग क्या होनी है। जिस जर्नल वाले ने अपनी स्टाइल फाइल दे रखी है, ऑटोमेटिक हमारा जो पेपर है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ सेक्शन 1 पॉइंट, ये देखो सब सेक्शन, इंट्रोडक्शन इज सेक्शन, ओके, एंड 1.1 अबाउट द प्रॉब्लम इज सब सेक्शन एंड दिस सब सेक्शन, है ना। और इसके अंदर फॉन्ट क्या होना है, सेक्शन का फॉन्ट क्या होना है, सब सेक्शन का क्या होना है, सब सेक्शन का क्या होना है, ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। ये सब कुछ ऑलरेडी उस क्लास फाइल के अंदर, इस जहां पर हमने क्लास फाइल क्या ले रखी है, ये आर्टिकल क्लास फाइल, ये वाली क्लास फाइल, इसके अंदर सारे फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें उसकी बारे में नहीं सोचना है ना। अभी मैं आपको इसके जस्ट बाद में आपको एक हाउ टू ऐड रेफरेंसेस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में आगे इस आर्टिकल में आऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहेगी कि सर एक बार फिर बता दीजिए कि स्टार्टिंग में हमें वो आर्टिफिशियल जो लिखा था वो कहाँ से सेलेक्ट करना था, क्लास आर्ट। हाँ, दिस वन ना, ये तो हाँ। इनबिल्ट है। ये तो आप जब भी जैसे अगर किसी जनरल स्पेसिफिक के ले रहे हैं तब तो उसकी क्लास फाइल लिख दीजिए यहाँ पर, वो खुद क्लास फाइल देगा, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे IEEE है ना, IEEE की साइट पे जाओगे तो IEEE ट्रांस ये वाली क्लास फाइल देता है, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करनी होगी क्लास फाइल, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम अभी इसको लेटेक को लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक जो लेटेक की इनबिल्ट क्लास फाइल है वही यूज कर रहे हैं, उसका नाम है आर्टिकल।
इसको आपको कैसे डाउनलोड नहीं करना, ये लेटेक मिकटेक कंपाइलर में ऑलरेडी इनबिल्ट है ये वाली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास में इस क्लास फाइल को पास करना है। एक तरीके से पास करना मतलब आपको बस ये लिखना है स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास और इस फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इसके अंदर कि और सर ये पैकेजेस का यूज करते हैं कैसे, मतलब कौन से करने हैं क्या? हाँ, जब भी आपको जैसे इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के लिए एएमएस मैथ और भी कई सारे मैथमेटिक्स के पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप जैसे ही गूगल करेंगे, जैसे ही गूगल, एक्चुअली गूगल के अंदर इसकी इतना अच्छी कम्युनिटी है, और गूगल नहीं, विकीपीडिया, विकीपीडिया में इसकी सारी जानकारी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको इसके अंदर कोई इक्वेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, मैं भी आपको इसमें बताने वाला था। इसके अंदर अगर कहीं हो तो चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल है ना, टेबल कैसे लिखनी है मुझे नहीं पता अब, लेकिन मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, एक इसने टेम्पलेट दे रखा है जैसे, ठीक है, टेम्पलेट दे रखा है, मैंने किसी भी एक टेम्पलेट को कॉपी किया। अभी जो मैं इस कर रहा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मुझे इस जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओपन तो नहीं, पहले ओपन, इसको बंद कर। इतना अच्छा दे रखा है, आप जो चाहोगे उसके अंदर है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये देखिए, तो ये टेबल बन के आ गई है ना, ये टेबल। अभी टेबल के कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, है ना, वो मैं सब आपको वन बाय वन करके उस पर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला था वो कि रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कि हमें किसी भी रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंस को कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इसको डाउनलोड करना है, जेब्रेफ को। ये जेब्रेफ डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से नजर आता है। जेब्रेफ को डाउनलोड करने वीडियो के बाद नहीं आ रही है सर हमारी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर। आवाज भी नहीं आ रही है आ सर, रही है। ना वीडियो ना आवाज। तो आप अपनी, आ रही है सर? सर आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू रखिए सर। ओके, मे बी उनके जो जिनको नहीं आ रही उनके एंड पे कोई दिक्कत होगी, इसका मतलब है ना। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, ये जेब्रेफ है। आपको केवल इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मैंने आपको लिंक दे दिया, वहां से केवल इंस्टॉल करना है। अब देखो, बिना एक सिंगल वर्ड टाइप किए, बिना एक सिंगल वर्ड टाइप किए आप पूरे रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करते हो, कैसे साइट करते हैं। हम यहाँ कोई नहीं कुछ टाइप करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने इसको कंपाइल किया था, मेरे पास दो फाइल थी पहले, रेफ और टेस्ट। अब देखो कितनी सारी फाइलें ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये सारी टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हुई है। इन टेम्परेरी फाइल्स में से .oex ये एक ऑक्सिलरी फाइल है, इसकी कोई यूज नहीं आता है। आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो, कई बार कंपाइल करते समय एरर भी आती है, तो इनको सबको डिलीट भी कर सकते हो। ये .bbl फाइल, ये बिब्लियोग्राफी वाली फाइल है। अब ये एम्प्टी होगी क्योंकि अपन ने कोई भी बिब्लियोग्राफी, कोई भी रेफरेंस अभी तक अपने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ओपन करके आपको बताता हूँ किसी में नोटपैड वगैरह किसी में, अच्छा वर्ड पैड में आपको इसको ओपन करके बता रहा हूँ। ये देखो, इसमें द बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है एंड, और ये बिल्कुल एम्प्टी, क्योंकि हमने कोई अभी एक भी रेफरेंस को यूज नहीं किया है। इस रेफ को तो यूज कर रहे हैं, रेफ के अंदर कितने सारे रेफरेंसेस ऑलरेडी हमने इतने सारे डाल रखे हैं, लेकिन हमने हमारे आर्टिकल में यूज नहीं किया है, इसलिए उस फाइल के अंदर नहीं आया है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी वही आर्टिकल आएंगे जो हम हमारे रिसर्च आर्टिकल, वही रेफरेंसेज आएंगे जो हम हमारे रिसर्च आर्टिकल में यूज करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला था कि कैसे बिना एक सिंगल वर्ड को टाइप किए आप रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मैं पहले आपको पीपीटी के थ्रू बता दूं, फिर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इसको। आई थिंक मैं स्लाइड विजिबल, ओके। मैंने आपको देखो दो चीजें उसके अंदर ऐड कर रखी थी, एक तो स्लैश बिब्लियोग्राफी स्टाइल, देन बिब्लियोग्राफी। ये दो कमांड है इसके अंदर, स्लैश बिब्लियोग्राफी स्टाइल और बिब्लियोग्राफी। ओके, यहाँ हम स्टाइल देते हैं, किस स्टाइल का हमें, किस स्टाइल में हमारे रेफरेंसेस थेसिस में आनी चाहिए। जैसे कोटा यूनिवर्सिटी में रूल बना रखा है कि भाई जो ऑथर्स के नेम एंड ईयर यही आने चाहिए हमारी थेसिस के अंदर, हमारे रिसर्च आर्टिकल के अंदर, जो भी उनका नॉर्म्स बनाया, तो उस वाली स्टाइल फाइल को यहाँ यूज कर लो। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो
ऑटोमेटिक ये इस उसी फॉर्मेट के अंदर, यहाँ प्लेन के अंदर आप यहाँ पर UNSRT यानी शॉर्टेड ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने उनको साइड किया उसी ऑर्डर में आ जाएंगे। ऐसे कई सारे स्टाइल फाइल है, एपीएच स्टाइल फाइल है, उसमें केवल ऑथर्स के नाम और ईयर आते हैं, कुछ में नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ आपको वो किस स्टाइल में आपको अपने रेफरेंसेस को डिस्प्ले कराना है, बस उसका टाइप यहाँ लिखना है। ये जनरली इनबिल्ट होती है, अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिक लेटेक इसको इंस्टॉल कर लेगा इस स्टाइल फाइल को। और यहाँ आती है बिब फाइल, इसके अंदर आपको उस फाइल का नाम डालना है जिसके अंदर आपने अपने सारे रेफरेंसेस को सेव कर रखा है। तो मैं जस्ट जेब्रेफ के अंदर हमारा जो अभी था, अभी जो हम अभी जो हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसमें REF नाम से हमने फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है। तो एक तो हमें उसकी स्टाइल बतानी है और उसकी फाइल का नाम बताना है, और उसके अंदर फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है। इस तरीके से ये कुछ स्टाइल्स दे रखी है। UNSRT मतलब ये शॉर्टेड ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराता है। प्लेन, ये जो डिफॉल्ट है वो प्लेन होता है। IEEE ट्रांजेक्शन, IEEE अपना खुद इसकी स्टाइल फाइल बना रखी है कि हमारी रिसर्च, हमारी जो पब्लिशिंग हाउस है उसमें इस स्टाइल के रेफरेंसेस ही आएंगे। अब आपकी कितनी मेहनत बच गई है, आपको केवल स्टाइल फाइल का नाम डालना है, आपके सारे रेफरेंसेस इस स्टाइल फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना, उसका केवल नेम इंसर्ट करना है। अब सोचो कई बार आपको एक जर्नल में आपने पेपर सबमिट किया, वहां से आपका पेपर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। मान लो आपने स्पिंजर में पेपर, स्पिंजर के पर्टिकुलर एक जर्नल में पेपर डाला है, उस जर्नल ने आपने पेपर रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद उन कमेंट्स को आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसी पेपर को आपने अपडेट करके किसी और जर्नल में सबमिट करना है। तो आप क्या उस दूसरे जर्नल के अकॉर्डिंग पूरा चेंज करेंगे? आपको उस लेटेक में करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जिस जर्नल में आपको पेपर सबमिट करना है उस जर्नल की क्लास फाइल को आपकी क्लास फाइल से रिप्लेस कर देंगे। उस जर्नल में जो रेफरेंसेस की स्टाइल है उसको यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली उस जर्नल के अकॉर्डिंग पूरा पेपर कन्वर्ट होके मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। ऐसे कई सारी यहाँ स्टाइल फाइल्स अवेलेबल होती है, आप गूगल करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जिस फॉर्मेट में चाहेंगे उस फॉर्मेट में आपके जो है वो जो रेफरेंसेस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टाइल फाइल का फॉर्मेट होता है BST, है ना। तो इसको आप डाउनलोड करें और अपने इस फोल्डर के अंदर जहां आपका ये फोल्डर रखा हुआ है, जहां आपकी ये मेन टेक्स्ट फाइल रखी हुई है, उसमें उसको कॉपी कर दें, अपने आप आपका सिस्टम वहां से उठा लेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल स्कॉलर। आपकी अगर आईडी नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर इसमें आपकी आईडी बना लीजिएगा। गूगल स्कॉलर में अगर किसी भी यूजर की आईडी नहीं है तो वो गूगल स्कॉलर में जाके सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि आउटर वर्ल्ड में आपको कोई नहीं पहचानता है। अगर आप कहीं अपना रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, आप अपना कोई बुक का प्रपोजल भेजते हैं किसी पब्लिशर के पास, आप कोई कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल भेजते हैं किसी पब्लिशर के पास कि मेरी प्रोसीडिंग आपके पब्लिशिंग हाउस में सबमिट कर दो, एक्सेप्ट कर लो आप पब्लिशिंग के लिए, तो सबसे पहले जो आपकी डिटेल मांगता है एज ए एडिटर, एज ए ऑथर, तो वो जो आप अपनी डिटेल भेजते हो तो आपका सबसे पहले वो गूगल स्कॉलर चेक करता है। गूगल स्कॉलर चेक करके वो देखता है कि इसका रिसर्च प्रोफाइल क्या है, क्या जो प्रपोजल इसने भेजा है वो ये जो सबमिट कर रहा है द पर्सन हु इज केपेबल इनफ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट और नॉलेजेबल इनफ टू डू द क्लेम्ड टास्क। जो ये टास्क ये क्लेम कर रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मेरा ये रिसर्च प्रोफाइल है, तो पहले वो सब कुछ आपकी डिटेल इस गूगल स्कॉलर के थ्रू, या तो रिसर्च गेट होता है, गूगल स्कॉलर होता है, ठीक है, स्कोपस के अंदर होता है। तो इनमें आपकी अपनी आईडी, ऑर्चिड आईडी, इस तरह की आईडीज आप क्रिएट करके रखिए अगर आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गूगल स्कॉलर फ्रीवेयर है, इसको अपन कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि कम से कम गूगल स्कॉलर पे हर स्टूडेंट की आईडी होना चाहिए, है ना। गूगल स्कॉलर जनरली इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी के थ्रू किसी भी यूजर को वेरीफाई करता है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करके कोशिश कीजिए कि आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी मिल जाए, जिससे कि आप गूगल स्कॉलर में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सके। और उस आपके इंस्टीट्यूट को क्या फायदा होता है? आपके इंस्टीट्यूट को ये फायदा होता है कि अगर कोई उस इंस्टीट्यूट का इंडेक्सिंग देखना चाहे, उस इंस्टीट्यूट की इंडेक्सिंग, जैसे आज NBA, NAAC इस तरह के जो एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की भी इंडेक्सिंग चेक करनी हो तो वो भी आप गूगल स्कॉलर से पता कर सकते हो, तो वहां उसकी भी इंडेक्सिंग बढ़ती है आपके साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे जाके किसी जिसको भी आर्टिकल को, जैसे मैं आपको फिर बता दूं, इसमें मैं इसमें ओपन करता हूँ scholar.google.com, scholar.google.com, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप जाके यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा।
मैंने चैट बॉक्स में डाला है इसको भी, लिंक को, scholar.google.com। इस तरह से ओपन होकर आती है ना। जैसे ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इंस्टीट्यूट आईडी से, तो यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल भी देख सकता हूँ, आप भी अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ आपको देखो, यहाँ सबसे अच्छा क्या है, आपको पता रहेगा कि आपकी कितने साइटेशन हो चुके हैं, आपका एच इंडेक्स कितना है, आपका I10 इंडेक्स कितना है। तो ये आउटर वर्ल्ड में इसी से आपका रिकॉग्निशन है। अगर किसी को भी आपके बारे में जानना है, आपकी रिसर्च प्रोफाइल के लिए जानना है, तो क्या करेगा वो, सीधा सीधा जो है वो इसको देखेगा, इसके बेसिस पे वो एनालिसिस करेगा कि आपका रिसर्च प्रोफाइल क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ कि हमें अब रिसर्च आर्टिकल्स को साइट कैसे करना है, हमारा डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे मैं वर्क करता हूँ नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स पे, मेटाविस्टिक एल्गोरिथम, जैसे मैं क्लिक करूंगा गूगल स्कॉलर में, तो जितने भी इससे रिलेवेंट आर्टिकल्स होंगे वो देखिए वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर। जितने भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सारे आ जाएंगे इस तरह से। ओके, अब मुझे किसी को साइट करना है, मान लो इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा है और इसको मुझे मेरे डेटाबेस में लेना है ना। तो आपको कुछ नहीं, देखो अभी तक केवल मुझे कोई सर्च किया है मैंने कि मुझे कौन सा किस टाइप का आर्टिकल चाहिए। उसके बाद लेट सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस आर्टिकल, है ना। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसकी PDF अवेलेबल है, इसका HTML में फुल व्यू अवेलेबल है, इनका अवेलेबल नहीं, इसका PDF अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ्रीवेयर हम किस तरीके से इनके सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे जिसको साइट करना है, ओके, तो साइट करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइट, जैसे मैं साइट पे क्लिक करूंगा, डिफरेंट फॉर्मेट्स में साइट करने के तरीके यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। हमें इसको नहीं देखना है, हमें केवल यहाँ बिबटेक्स उठाना है इसका। मैंने यहाँ बिबटेक्स, यहाँ देखिए बिबटेक्स दे रखा था वहां पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। जैसे आप किसी को पे क्लिक करते हो, सबसे पहले मैं आपको कहाँ क्लिक करना है, गूगल स्कॉलर में जाना है। गूगल स्कॉलर में हमें जिस टाइटल को सर्च करना है उसको एंटर करना है, जिसको हमें साइट करना है। यहाँ पर साइट का बटन दे रखा है, जैसे आप साइट पे बटन पे क्लिक करोगे डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसके साइटेशंस के जो टेक्स्ट है वो आपको नजर आएगा। उसके बाद हमें बिग टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, बिग टेक्स्ट। ओके, बिग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक टेक्स्ट नजर आता है जिसमें ये बताया जाता है कि एक आर्टिकल है, @ यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस तरीके से। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, है ना। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा आर्टिकल, ठीक है, ये आता है, ये उसकी की होती है, इस आर्टिकल की की। उसके बाद इस आर्टिकल का टाइटल, दिस इज द टाइटल लिखा हुआ है ना, ये टाइटल है। ऑथर, इस आर्टिकल में कौन कौन से ऑथर है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो जर्नल इक्वल्स टू दिस वन। वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा वॉल्यूम का नंबर था, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक थे, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है, और इसका पब्लिशर कौन है ना। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है, हमें टाइप कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने केवल बिबटेक्स पे क्लिक किया है। बिबटेक्स पे क्लिक करते सारी इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल। इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके जो हमने जेब्रेफ डाउनलोड किया था वहां पर जाके अब प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक किया। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो में नजर आता है इस तरीके से। यहाँ पर बॉटम में देखिए आप, इसमें डिफरेंट में इंडिविजुअल आर्टिकल को एड करने का भी आता है, ऑप्शनल फील्ड, कमेंट्स, जनरल, एब्स्ट्रैक्ट, रिलेटेड आर्टिकल्स, साइटेशन, रिलेशंस एंड बिबटेक्स सोर्स। आपको बिबटेक्स सोर्स पे क्लिक करना है, आपको बिबटेक्स सोर्स पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल ए, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V, बस यहाँ पर कॉपी किया है मैंने। बिबटेक्स सोर्स में जाके इस बिबटेक्स टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर दिया। इसके बाद इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। इसके बाद मैंने इस लाइब्रेरी को कर दिया सेव। जैसे मैं सेव किया इसको, उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये आता है आपके की, इस जगह पे हर आर्टिकल के लिए ये जैसा भी सेव हुआ है, ये वाला लियोन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आप चाहो तो यहाँ से इसको किसी भी कॉलम वाइज सर्च कर सकते हो, ऑथर वाइज इसको शॉर्ट कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब मैंने इसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद अब मुझे इसको टेक्स्ट को साइट करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर आ गया, वो ऐड होके है ना, इसमें से किसी भी, इतने सारे मैंने ऐड कर चुका हूँ इसके अंदर। अभी तक देखो मैंने कुछ टाइप नहीं किया है ना, मैंने सीधा गूगल स्कॉलर में गया हूँ, वहां से बिबटेक्स को कॉपी किया है, कंट्रोल A प्लस कंट्रोल C, यहाँ पर आके उसको मैंने कंट्रोल V करके ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मान लो अगर मुझे किसी को भी साइट करना है तो यहाँ राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करके
कॉपी में ऑप्शन आते हैं कि आपको उसको साइट कैसे करना है। तो यहाँ कॉपी साइटेशंस की, उसकी की को यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करते हो उसकी की को यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मैं इसको अंदर पहले ही ऐड कर चुका हूँ, ये REF यही फाइल है, वहां सेव है से हमारे पास। ठीक है, REF फाइल है यहाँ पर। ठीक है, REF फाइल ऑलरेडी हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं, REF है ना। इसका मैंने अभी बिब्लियोग्राफी स्टाइल फाइल ली, एपा साइट, एपा APA CIT APA फॉर्मेट के अंदर साइट करने के लिए मैंने स्टाइल फाइल ली है और REF फाइल है। इसमें से मैंने पर्टिकुलर किसी भी एक रेफर को लिया है और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, उस की को जो वहां से कॉपी की उसको मैंने यहाँ पर आकर ये पेस्ट कर दिया है। पेस्ट किया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके अब मैं ओपन तो नहीं इस ऑलरेडी, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पर। जीरो एरर, यानी कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है वो। ठीक है, अब आप यहाँ पर आके देखेंगे, ये देखिए वो रेफरेंस जिसको मैंने साइट किया था यहाँ पर साइट होके आ गया है, उसकी साइट डिटेल आ गई है। और जिस फॉर्मेट में वो आया है वो फॉर्मेट क्या है, APA फॉर्मेट है ना। APA फॉर्मेट के अंदर वो जो है यहाँ पर साइट हो गया है। और अपने कहाँ साइट किया था इसको, एक्चुअली APA फॉर्मेट में नंबरिंग आती नहीं, ऑथर्स के नाम आते हैं। ये रहा दिस वन, ये यहाँ पर जहाँ पर साइट किया था यहाँ पर ये विजिबल है, ये APA फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जहाँ पर हमने इसको साइट किया था वहां पर विजिबल है। इसमें APA फॉर्मेट में क्या होता है, नेम्स आते हैं और ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, नेम्स एंड ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, इसमें सीरियल नंबर नहीं आते हैं, नेम्स एंड ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। ओके, तो इस तरीके से अगर मुझे किसी और रेफरेंस को साइट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम साइटिंग, ये देखो अभी जिसको मैंने ऐड किया था आपके सामने गूगल स्कॉलर से, अब मैं इसको साइट करता हूँ। लेट्स सपोज नाउ आई एम साइटिंग दिस वन हियर। की वन की टू आता है तो उसको आप हटा सकते हो, अभी हम इसको यूज कर नहीं रहे ना। तो आपको बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्लैश साइट, साइट करने के बाद उसकी की, उस आर्टिकल की डालनी होती है, स्लैश साइट देन की, स्लैश साइट देन की। ओके, ये डालना होता है। एक और मैं आर्टिकल करता हूँ यहाँ पर, कॉपी, ओके, कॉपी साइटेशन की। कॉपी, कॉपी साइटेशन की। ओके, एक दो और आर्टिकल ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहेगा किस तरीके से इसको मैंने इसके कॉपी जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, कॉपी साइटेशंस की। अगर आपको अभी नहीं आया, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी इस लेक्चर की, तो आप उससे में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने 5 जो है ना पेपर्स को यहाँ साइड किया है, अब मैं इसको वापस से कंपाइल कर रहा हूँ। अगर आपको कई बार दिक्कत आती है कंपाइलेशन में, कोई एरर आती है, तो आप उसकी टेम्परेरी फाइल डिलीट कर सकते हैं, या इसको बिब्लियोग्राफी में कोई अगर फाइल नहीं आ रही तो इसको बिब्लियोग्राफी फाइल को भी यहाँ से B से कंपाइल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जनरेट हो क्या है, टेक्स्ट। ओके, ये जब टेक्स्ट जनरेट होकर आता है तो ये देखिए यहाँ पर साइट होकर आ रहे, सिमोन्स एट अल 1997। इस तरीके से 5 के 5 आर्टिकल्स यहाँ पर साइट होकर आ जाते हैं, जेंग एट अल 2011। ओके, ये APA साइट फॉर्मेट से आ रहे हैं, APA साइट फॉर्मेट से आ रहे हैं। ये हमारे पास जो यहाँ ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाते हैं। अब मैं इसका फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पर प्लेन कर देता हूँ, प्लेन। मैं दोबारा जनरेट मतलब बिब्लियोग्राफी जनरेट करने के लिए होती है ये वाली। ठीक है, बी अगेन जनरेट द बिब्लियोग्राफी फाइल। ओहो, मैंने इसको PDF को क्लोज नहीं किया, एरर जनरेट करेगा।
अभी भी पुराने प्लेन फॉर्मेट में ये देखिए यहाँ पर इसका नंबरिंग चेंज हो गया है, यहाँ 2 हो गया है अब, है ना, 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में। ये फर्स्ट रेफरेंस यहाँ साइट हुआ है, ओके, सेकंड यहाँ पर साइट हुआ है, आपको नजर आ रहा हो तो पहले आ रहा था ऑथर नेम, एंड ये थर्ड रेफरेंस यहाँ पर साइट हुआ है इस तरीके से। ये सेकंड को मैंने दोबारा यहाँ साइट किया है ना, यानी सेकंड रेफरेंस को 2 बार हमने साइट किया है, और दिस इज द फोर्थ वन। इस तरीके से 4, लेकिन यहाँ नंबरिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग एरर, ओके। तो आप चाहो ना तो वापस से जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको कभी भी डिलीट कर सकते हो। हमारे पास ऐसे भी कितनी फाइल की रिक्वायरमेंट है, केवल 2, टेस्ट एंड रेफ। इसके बाद डिलीट करके दोबारा हम कंपाइल करके देखते हैं। प्लेन फॉर्मेट में नंबरिंग नहीं आ रही है, मैं और फॉर्मेटिंग यहाँ इंसर्ट करता हूँ इसमें, UNSRT शॉर्टेड ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो आएगा उसी में UNSRT, या अनदर स्टाइल फाइल है बिब्लियोग्राफी को साइट करने की। ये देखिए आप जब जैसे कंपाइल करते हैं वापस से वो टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पर जनरेट हो जाती है। आप चाहें तो इनको ये डिलीट कर सकते हैं, ये इनका कोई यूज नहीं होता है। देखिए अगर आप किसी को अपनी बिब्लियोग्राफी फाइल से शेयर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको .bbl फाइल आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर आई हैव कॉल। सर एक्चुअली मैंने ये तीनों आपने जो भेजा है खोलने की कोशिश की, बट पीसी में खुल नहीं रही है ये। इट्स सेइंग दैट पीसी इज नॉट सपोर्टिंग द वर्जन। आपका विंडोज कौन सा है? सर विंडोज आई थिंक सर 11 है, आई डोंट नो, इतना पता नहीं। विंडोज तो फिर तो 11 तो बेस्ट वन, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने कौन सी सर नहीं, विनेडिट, ये कौन सा जेब्रेफ भी खोलने की कोशिश किया? सर तीनों खोलने की कोशिश की मैंने। क्या एरर आ रही है? इंस्टॉल किया आपने? हाँ सर इंस्टॉल किया, वो वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है विंडोज। या तो कोई आपके पास एनवायरनमेंट मिसिंग होगा। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर लो, है क्या आपके पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट? मुझे एरर नो देखनी सर। पड़ेगी आपके पास एरर क्या आ रही है ना। उसके बाद ही तो हम ये क्लास अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट मी टू कंप्लीट दिस सेशन। केवल 1 आवर और रिमेनिंग है। उसके बाद आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके बताइएगा, फिर देखते हैं ना। एक्चुअली सर मैं पीसी में खोल रही हूँ और मैं लैपटॉप से ज्वाइन हूँ, इसलिए थोड़ा सा हाँ तो कोई इशू नहीं है, आप लैपटॉप पे ही फिर उसको ओपन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, है ना। जी सर ठीक है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर डालेंगे गूगल में, आपको हर चीज के लिए, अच्छा जैसे मान लो मुझे वर्ड पेपर इसको यहाँ पर साइट करना है, आपके तो क्लियर हो गया पेपर को कैसे साइट करना है। सीधा यहाँ पर साइट पे क्लिक करना है, मैं गूगल स्कॉलर में उसको पहले तो यहाँ जिस पेपर को कीवर्ड या कुछ भी यहाँ सर्च कीजिए गूगल स्कॉलर के अंदर, तो आपको सब बता देगा कि इस पेपर को अब तक कितने लोगों ने साइट किया हुआ है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से साइट करने के, इससे रिलेवेंट कितने आर्टिकल्स और भी अवेलेबल हैं, इसके कितने, है ना। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें साइट पे क्लिक करना है हमेशा, और जो है जिसमें एक और पेपर ले रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, साइट पे क्लिक करना है और बिबटेक्स, इसका जो बिबटेक्स है बिबटेक्स पे क्लिक करना है। बिबटेक्स पे क्लिक करके इस तरीके से आपको टेक्स्ट नजर आता है, जिसमें ये जो की होती है बस स्लैश साइट करके इसी की को वहां इंसर्ट करते हैं। जैसे इस की को इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिक इसकी डिटेल वहां पर हमारे टेक्स्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है पूरे टेक्स्ट को, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है जेब्रेफ उसमें जाके यहाँ प्लस साइन करके इसको बिबटेक्स पे क्लिक करना है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड करके सेव कर देना है इसको। ठीक है, तो जैसे ये सेव होके आ गया यहाँ पर, ये प्रोसीडिंग पेपर है, ये नेचर स्प्रेड मेटालिस्टिक्स, ये इस लोकेशन में सेव होके आ गया। अगर मैं इसको वापस से साइट करना चाहूँ तो इसको मैं, इस की को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इंसर्ट करके मैं इसको साइट कर सकता हूँ। साइट करने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने स्लैश साइट और उस की का नाम,
ये की कौन सी थी? ये वाली जो गूगल स्कॉलर में जब साइट कर रहे थे तो ये वाली की है, चायरोमा 2020 नेचर। देखिए स्लैश साइट, मेरी ये स्क्रीन दिख रही है आपको जो मैंने यहाँ मेरे ख्याल टेक्स्ट जरूर छोटा है, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। स्लैश साइट ए चायरोमा 2020 नेचर, तो उस की को इसके साथ इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट जनरेट होके आ जाता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताइए। सर आपने बताया कि गूगल स्कॉलर पे अपनी आईडी बनानी होती है, तो यदि हमारी आईडी नहीं बनती है तो भी हम पेपर देख सकते हैं? 300 वाले भी भेजी थी, मैं रिटायर होगी यार। एडमिन हेलो प्लीज सर। म्यूट, या इसको म्यूट कर दीजिए एडमिन, जो साढ़े थोड़ा सा साढ़े म्यूट सात हो तैयार हो गया है। जाओ यार, है ना? हाँ, रोटी का तो पता लगाएंगे कि जी, अब वहाँ राज जी भोजन को मिल रहा म्यूट है कि कर नहीं मिल दीजिए रहा। पहले। इसके लग ही देना ना, नहीं पहली बार मिला था। लो किधर चल रहे हो आप? इधर चले हो ना, बैठो ना। इसके में कितने एडमिन ये प्लीज नाक जोरदार में जी को लगी म्यूट कर और दीजिए। अरे यार, ये तो मुझे अभी बात पता लगी भी, सुनी थी मैंने। तो सर इसको थोड़ा हेलो घर पे रखो थोड़े दिन, एक दो दिन। नहीं, इसको घर पे रखो एक दो दिन। जोधराज जी म्यूट हो जाइए। एडमिन, एडमिन आप कर सकते हैं म्यूट उनको, जो एडमिन है वो नो म्यूट सर, कर मैं सकता है। एडमिन नहीं हूँ, एडमिन ने मैं क्या, तो राहुल अरे जिसने इधर ये इतने स्टार्ट किया है। कर्मचारी बढ़ गए क्या? मैं राहुल जी इतने बोल रही कर्मचारी हूँ। बढ़ सर या गए तो हैं तो भी ये मतलब मुझे ये या तो होस्ट अगर महिला होस्ट बना बहुत। दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये जानना चाह रही थी कि गूगल स्कॉलर पर यदि हमारी आईडी नहीं बनती है तो भी हम रिसर्च पेपर साइट कर सकते हैं? हाँ देखो, जैसे मैं आवाज़ नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है सर। सर साइन आउट हो गए। सर तो है, लैपटॉप शायद उनका हैंग हो रहा है। मैम कॉल कर लीजिए ना एक बार सर को। इन्फॉर्म कर दिया, प्लीज आप, अभी हो जाएगा। मैं दूर मैडम की आ रहा हूँ मैं सुबह। अभी आप वेट करिए 5 मिनट्स, सर का टेक्निकल इशू है कुछ। ओके।
का लीड है। क्लास ओवर हो गई है क्या? नहीं, अभी क्लास ओवर नहीं है, अभी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में सर। ओके, थैंक यू।
राहुल सर, पुराने पेपर मिल जाएंगे क्या अपनी इस एग्जाम के, कोर्स वर्क एग्जाम के? कोर्स वर्क एग्जाम के पुराने पेपर किसी को मिले क्या? क्लास ओवर हो गई क्या? कोई नहीं है क्या? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, इस वजह से क्लास ठीक है रुक रही मैम, है। ठीक है। नेहा सोनी मैम आप है क्या?
आसिफ सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर। आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। जी आ रही है सर। किसको कर रहा है? Hello, I am audible. Can I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, You sir. are audible. Yes, sir. We can hear you. Yes, yes. Unfortunately, उनसे बात नहीं हो पा रही है हरीश जी से। Yes, sir. अनफॉर्चुनेटली हरीश जी से बात नहीं हो पा रही है और वो शायद कनेक्शन में आ नहीं पा रहे हैं। जी सर सर। आप डिस्कनेक्ट हो सर 5-10 मिनट से सर। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, सर ठीक है ठीक है। आप ज्वाइन हो, आप जल्दी से ज्वाइन होइए, डिस्कनेक्ट करनी पड़ रही है मेरे क्लास में। मैं बोलता हूँ सर ज्वाइन हो। हेलो सर, ज्वाइन हो रहे हैं हाँ सर थोड़ी देर में। ठीक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सर ज्वाइन कर रहे हमारे हैं लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? आप प्लीज होल्ड करिए, वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं, वो ठीक है सर। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ज्वाइन हो ठीक रहे है, हैं। ओके। ओके सर। Sir, what are instructions for us? वो ज्वाइन कर रहे हैं सर, अभी थोड़ी देर में बात हो चुकी है उनसे। वैसे ही 4:30 बज गई, अब ज्वाइन करेंगे 10 मिनट लगेंगे, क्या मतलब है? हम तो जाए फिर डिस्कनेक्ट कर दे हम तो। हेलो हेलो। Yes, please. सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैं कब डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मैं वहाँ कंटिन्यू चल रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से मिस किया। थोड़ा आइडिया कोई आप में से कोई बता सके तो। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गूगल स्कॉलर पर यदि हमारी आईडी नहीं बनती है तो भी हम पेपर साइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद से डिस्कनेक्टेड है? हाँ जी सर। ओ भगवान, उसके बाद तो मैंने बहुत कुछ करा दिया। हाँ सर, ये तभी से डिस्कनेक्टेड है उस क्वेरी के बाद में। इसका मतलब तो मेरे ख्याल मोर देन 10 मिनट्स हो गए हैं। जी सर। ज्यादा हो गए सर, 15-20 मिनट हो गए। कोई नहीं। ओके चलो, आपको ये साइट रेफरेंसेस ऐड करना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, अब है ना? उसमें कोई इशू नहीं है। आपको गूगल स्कॉलर आईडी होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, गूगल जी स्कॉलर सर। आईडी नहीं भी है तो भी आप जो है वो गूगल स्कॉलर से जो है वो अपने उनको पेपर्स को साइट कर सकते हैं, scholar.google.com। जैसे मैं इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जी ये देखिए, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ, शायद उसमें मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा पता नहीं आपको।
सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए शायद। सर आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है तो आप बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ सर, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर, वो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी। हेलो। एक्चुअली वो मुझे पता चल गया क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे मैं इनको एग्जांपल देने के लिए अपने आप को साइन आउट करता हूँ ना, साइन आउट होने के बाद एक गूगल मीट से ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाता हूँ मैं। गूगल हेलो। मीट ही चल रहा है ना सर? हाँ, गूगल मीट चल रहा है, मैं अपने आप को साइन आउट कर लेता हूँ। साइन साइन आउट आउट करने से नहीं करना है ना सर उसको सर, हाँ गूगल हाँ मीट से तो बाहर आ नहीं जाओगे ऑटोमेटिक सर। नहीं, गूगल मीट से नहीं कर रहा, स्कॉलर से करने से भी, क्योंकि सेम क्रोम पे है वो, तो यहाँ से भी मुझे साइन आउट कर देता है गूगल मीट से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। आपको स्कॉलर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर किसी को आपको साइड भी करना है तो। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि किस तरीके से टेबल इंसर्ट करनी है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि एक तो या सीधा आप जाइएगा कहाँ पर, मैंने क्रॉस रेफरेंसिंग शायद आपको बता दी थी क्या? मुझे नहीं लगता मैंने बताया होगी उस समय, है ना? तो अब क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको सेक्शन में बताया था कि लेबल क्या होता है, लेबल या इंसर्ट कर दिया हमने। लेबल का मतलब होता है सेक्शन का, सेक्शन, सब सेक्शन, टेबल, फिगर, जिसको भी आपको नेम देना है, जिसको भी आपको नेम देना है तो लेबल लगाकर इसको नेम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करनी होती है कि उस सेक्शन में मैंने बताया था, उस फिगर में मैंने बताया था, उस टेबल में मैंने बताया था, तो यहाँ लेबल काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्चुअली बैकग्राउंड में जो अपनी क्लास गोइंग ऑन थी, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, एक टेबल बनाई है मैंने। टेबल कैसे बनाते हैं पहले मैं बता दूं आपको अब, कि बिगिन टेबल और एंड टेबल, इसके बीच ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसके बीच में कोई टेबल इंसर्ट करनी होती है हमें। तो अब एक टेबल में यहाँ पर इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ एक टेबल इंसर्ट करनी है, तो एक तो एनवायरमेंट है, यहाँ से इंसर्ट, आप सीधा जाओगे यहाँ पर इंसर्ट पे, इंसर्ट पे यहाँ एनवायरमेंट में आता है आपको कि क्या आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशंस, इक्वेशन अरे, उनकी फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आराम से। अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल पे जाइए, टेबल पे किस तरह की इंसर्ट करनी है। जैसे मुझे टेबुलर फॉर्मेट में 3x3 की कोई टेबल इंसर्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, टेबुलर फॉर्मेट में 3x3 का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। अब मुझे यहाँ केवल डेटा इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ मेरे को तीनों ही 3 कॉलम है, ये 3 यहाँ पास करना है। सबसे पहले कि तीनों कॉलम का जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो कैसा रहना चाहिए। जैसे सेंटर है तो सी सी सी, लेफ्ट अलाइंड है तो मैं एक को लेफ्ट कर दूंगा, सेकंड को, सेकंड कॉलम का सेंटर, थर्ड कॉलम का सेंटर। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, मान लो 45 M%, M% का मतलब होता है अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर, है ना? आप सीधा एक्सेल से भी ले सकते हो। 56, 68, 23, 34, 67। ये एक टेबल क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पर, पहले से ये ओपन है, ये देखिए। तो जब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये इस तरह से टेबल यहाँ पर बन के आती है, लेकिन टेक्स्ट के साथ आ रही है ना, कोई से, क्योंकि टेबलर हमने इसको जो है ना स्टाइल को यूज किया है। अगर मैं इसको नंबरिंग फॉर्मेट में यूज करना चाहता हूँ, टेबल फॉर्मेट में यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बिगिन टेबल में लेना होगा, बिगिन टेबल। ठीक है, तो अपने आप इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इस टेबुलर फॉर्मेट को यहाँ पर आप देखिए,
तो टेबल, अब जब मैं इस टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ कैप्शन लिखना होगा कि इस टेबल का क्या क्या पर्पज है। आप जानते हो क्योंकि आप रिसर्च करोगे तो बिना कैप्शन के टेबल का कोई मतलब नहीं होता है। उसको आप रेफर, मतलब उससे ऑथर को, रीडर को कैसे पता चलेगा कि इस टेबल में क्या मेंशन कर रखा है। जैसे मैंने डेटा एनालिसिस एंड एलिजिबिलिटी लेबल, यानी इस टेबल, लेबल का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था। जैसे टेबल, ये क्या चीज है, एक तो टेबल, ठीक है, एक तो नाम ये हो गया, और किस चीज की टेबल है, डेटा, डेटा की कोई टेबल है। जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पर, ओहो इसको, ये देखिए डेटा एनालिसिस एंड विजिबिलिटी, है ना। तो इस तरह से एक टेबल का यहाँ कैप्शन आ गया है। ये टेबल का नंबरिंग, टेबल की नंबरिंग ऑटोमेटिक आती जा रही है। जैसे अब मैं इसमें 3 टेबल्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर चुके हैं। टेबल 1 ये वाली है, ठीक है, टेबल 2 है, ये टेबल 3 है ना। अब अगर मुझे इन टेबल्स के बारे में बताना है कि टेबल 1 में तो ये दिया गया था, टेबल 2 में ये बताया गया है, टेबल 3 में ये बताया गया है ना। तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे कर सकता हूँ, इन लेबल के थ्रू मैं इसकी आसानी से क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे बताना है कि तीनों टेबल्स में क्या क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए, इट इज एक्सप्लेन्ड, मैं कनेक्टेड टू ना, यस, इट इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स इन टेबल। अब मुझे जिस टेबल को मुझे साइट रेफर करना है, देखिए मुझे /ref रेफ लिखा है, /ref, और जैसे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ तो वहां पर क्या आ जाएगा। अब मुझे टेबल को करना है यहाँ पर, तो उस जिस टेबल को करना है उसको टेबल 2 इंसर्ट, तो यहाँ मैंने उसकी की को इंसर्ट कर दिया, उसके लेबल को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ अपने आप उसका क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाएगी, उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि उसका नंबर क्या है उस टेबल का, एंड आल्सो डिफाइंड इन टेबल। जैसे मैं ले रहा हूं दूसरी टेबल यहाँ पर, दिस वन, इंसर्ट। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, कर दिया, कंपाइल अगेन, यस, हमने किस जगह पे किया, इट इज एक्सप्लेन्ड, है ना, सेक्शन 1 में हमने लिखा हुआ है इट इज एक्सप्लेन्ड इन टेबल 2 एंड आल्सो डिफाइंड इन टेबल 3। देखो दोनों का अपने आप नेम यहाँ पर नंबरिंग आ जाता है, टेबल 2 एंड टेबल 3, ओके। अब मालूम है किसी टेबल को डिलीट कर देता हूँ, जैसे मालूम है टेबल 1 जो मैंने बनाई थी इसको डिलीट कर देता हूँ, तो सबकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। अब टेबल 1 को डिलीट करने के बाद, ये टेबल 1 मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब देखो क्रॉस रेफरेंसिंग में कितनी आसानी होती है इसमें। अब मुझे किसी कुछ भी चेंज नहीं करना है, वहां सारी टेबल्स के जो नंबरिंग है, अब जैसे टेबल 1 डिलीट होने के बाद टेबल 1 चेंज हो जाएगी, टेबल 2 चेंज हो जाएगी। ये देखो अब टेबल 1 जो टेबल 2 थी वो टेबल 1 हो गई है, ठीक है। उसमें जो टेबल 3 थी वो टेबल 2 हो गई है, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जहाँ टेबल 2 और टेबल 3 थी उसकी जगह ऑटोमेटिक हो गया है इट इज एक्सप्लेन्ड इन टेबल 1 एंड आल्सो डिफाइंड इन टेबल 2, यहाँ भी नंबरिंग। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग ये बेनिफिट होता है कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर मुझे यहाँ इस सेक्शन के बारे में बात करनी है, तो इस सेक्शन के बारे में बात करनी है तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, सीधा इट इज, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है इसका, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, है ना, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन, इन सेक्शन यहाँ लिखा है दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन सेक्शन, और ये उसका लेबल में यहाँ इंसर्ट कर दिया, उसका जो नेम दिया था ये एक्शन इंसर्ट कर दिया है ऐसा सब सेक्शन का, एंड इन आल्सो इन सब सेक्शन दिस वन, और उसका सब सेक्शन का लेबल यहाँ इंसर्ट कर दिया है। यहाँ तो मैंने सेक्शन का लेबल इंसर्ट किया है, देखिए ये है ना सेक्शन का लेबल, जो मैंने सेक्शन को नाम दिया था, ये लेबल सेक्स इंट्रो, तो यहाँ इंसर्ट कर दिया। ऐसे सब सेक्शन का लेबल मैंने दूसरी जगह पे इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ,
तो दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन सेक्शन 1 एंड इन सेक्शन सबसेक्शन 1.1। ठीक है, अब अगर आप किस सेक्शन को इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, सब सेक्शन को इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, तब आपको कोई फर्क नहीं, आपको उसके नोमेनक्लेचर, उसकी नंबरिंग के बारे में कोई मतलब आपको बोधर होने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है वो ये जो लेटेक है उसके अंदर अपने आप ये ना चेंज कर लेता है। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग जो है ना उसके लिए एक तो बड़ा बेनिफिशियल है। अब मैंने आपको बता दिया टेबल्स कैसे इंसर्ट करनी है। टेबल्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे एक फॉर्मेट आपको क्या करना है, हर प्रॉब्लम के लिए आपके पास एम आई कनेक्टेड, यस कनेक्टेड, हर प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या है, वन सॉल्यूशन, दैट इज द गूगल। सीधा गूगल खोलिए, ओके, गूगल पे जाइए, सारी इसकी इतनी वास्ट लाइब्रेरी आपको, हाउ टू इंसर्ट टेबल इन लेटेक, जितने भी तरह के फॉर्मेट आपके पास होंगे, और यहाँ सीधा विकिपीडिया, आगे इसको लिख दीजिए विकिपीडिया, और इट्स सेल्फ सफिशिएंट है ना टू गिव आंसर्स ऑफ योर ऑल द क्वेरीज। जैसे आपको जिस फॉर्मेट में लेना है, आपको लगता है कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, लेट्स सपोज यू रिक्वायर दिस इन दिस फॉर्मेट, ओके, तो आप सीधा इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और अगर आपको इसका कैप्शन भी देना है तो स्लैश बिगिन टेबल, मैं इसको टेबलर को टेबल के बीच में ले रहा हूँ, टेबल फॉर लर्निंग, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ, इस टेबल का नाम यहाँ पर वही टेबल, क्या चीज है टेबल, ताकि नाम से क्लियर हो जाना चाहिए चीज क्या है ना, लर्निंग। जैसे मैं इसको यहाँ पर कंपाइल करूंगा, ये टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। तो ऐसे कई सारे फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में भी आपको, एक्सेल से भी आप डायरेक्ट टेबल यहाँ पर वापस आपको क्या है कि 2 कॉलम के बीच में एम्परसेंड इंसर्ट करना है, तो एक्सेल से भी आप डायरेक्ट फिर उसके बाद टेबल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेबल 3, टेबल फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम फिगर को कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना। तो फिगर के लिए देखिए आप इसके अंदर ये पैकेज को इंसर्ट करना है, तो आपको ग्राफिक्स, जिस फिगर के लिए आपके पास इस पैकेज को इंक्लूड करना है, मैं ग्राफिक्स हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, अब हमें फिगर को इंसर्ट करना है, तो देख, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है, तो सीधा आपको वही गूगल, अगर आप कुछ भी नहीं आता तो सीधा गूगल में टाइप कीजिए इंसर्ट फिगर इन लेटेक, सॉरी विकिपीडिया के लिए विकी लिख दीजिए, और विन एडिटर, आपके पास एडिटर है तो आप बड़ी सिंपली यहाँ पर जाइए इंसर्ट, ठीक है, और यहाँ पर एनवायरनमेंट के थ्रू भी जो है वो, तो इसमें फिगर का एनवायरनमेंट नहीं है, ये बिगिन फिगर, एंड फिगर, ये आपका टेक्स्ट है, ये स्ट्रक्चर है इसका, बिगिन फिगर एंड एंड फिगर। फिगर को किस लोकेशन पे स्पेसिफाई करना है वो यहाँ स्पेसिफायर आपको यहाँ पर बताना होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफायर, एच प्लस द फ्लोट ईयर, टी पोजिशन एट द टॉप ऑफ द पेज, बी पोजिशन एट द बॉटम ऑफ द पेज, ये बताता है कि किस लोकेशन पे आपका फिगर अपीयर होके आता है। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, जस्ट कॉपी करेंगे बिगिन फिगर एंड फिगर, यहाँ टेक्स्ट में आपको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक कैप्शन है सेंटिंग इंक्लूड ग्राफिक्स, यहाँ आपको उसका इमेज का नाम देना है, जो इंक्लूड ग्राफिक्स में आपको इस जगह पे इमेज का नाम देना है जिसको आपको इंसर्ट करना है। जैसे इमेज G01, यहाँ पर मैंने इस फोल्डर में इसको डाल रखा है, यहाँ पर इस इमेज को मैं, यहाँ पर ये जो फिगर्स है वो EPS फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है, EPS फॉर्मेट की जो इमेज है उसी को लेटेक एक्सेप्ट करता है, तो मैंने इमेज G01, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पर, a picture of data analysis,
ये देखिए, तो मैंने ये फिगर, अब ये फिगर नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट फिगर है हमारे इसका आर्टिकल का, तो दिस इज फिगर 1, अ पिक्चर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ओके, एंड दिस इज ओके एनालिसिस, है ना। और यहाँ पर ये चार्ट जो है वो ये मैंने एक्सेल से जनरेट किया है ना, एक्सेल से जो चार्ट बनाया है, इमेज यहाँ पर ड्रॉ के इंसर्ट होके आ गई है ना। अब मैं इसको, इसमें भी लेबल दिया है मैंने, यहाँ पर देखो कैप्शन के साथ मैंने यहाँ पर, ओके, यहाँ लेबल नहीं दिया है, तो आपको यहाँ एनालिसिस, लेबल, ठीक है। यहाँ जैसे फिगर हो गया, डेटा, अब फिगर का नाम मैंने डेटा दे दिया ताकि मुझे याद रहेगा जब भी इसको मुझे क्रॉस रेफ में यूज करना है कि ये फिगर क्या है, ये फिगर किस चीज के लिए था, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस बिगिन फिगर, एंड फिगर, उसके बाद कैप्शन बताना है कि कैप्शन क्या है इसका, लेबल, ओके। हमें सेंटर में ले रहे हैं इस इमेज को, देन इट इज द इंक्लूड ग्राफिक्स, इंक्लूड ग्राफिक्स में इसकी विड्थ, आप इसकी विड्थ, हाइट, सब कुछ आप जो है ना वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कि किस हाइट का लेना है, किस विड्थ का लेना है, बंदी के। ये फिगर 1, ओके। इस तरीके से हम आप इसके लेंथ, हाइट और जो है वो सब आप चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स के थ्रू गो थ्रू हो रहा हूँ ताकि स्पीडली हम इसको कवर कर सकें। अब फिगर इंसर्ट कर चुके हैं, चाहे इक्वेशंस, इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करनी है, इक्वेशंस के लिए जैसे आप यहाँ एनवायरनमेंट है, यहाँ सीधा इंसर्ट पे जाइए, एनवायरनमेंट, देन इक्वेशन, ओके। इक्वेशन अपने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बन के आ जाता है। आप इसका यहाँ भी लेबल, लेबल मतलब इसका नोमेनक्लेचर, क्या नाम, नोमेनक्लेचर में क्या नेम इसको आप इंसाइड कर रहे हैं। यहाँ जैसे आपने इक्वेशन लिखकर दे दिया, ये इक्वेशन में एनर्जी की, या फिर बता दूं टेस्ट 1 इक्वेशन, कोई फर्स्ट इक्वेशन में टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। आप जो भी इक्वेशन बनाना चाहे वो यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं। और इवन इसके लिए भी सबसे सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाइए, सीधा गूगल पे जाइए, इंसर्ट इक्वेशन इन लेटेक्स, लेटेक विकी। आप इतने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में इक्वेशंस अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये वाला पैकेज हम यहाँ यूज करेंगे, AMS मैथ्स, ओके। यहाँ डिफरेंट मैथमेटिक्स के पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के लिए। जैसे फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल के लिए स्लैश फॉर ऑल, ओके। फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, तो बिलोंग्स मीन्स इन, स्लैश इन, इस तरह के यहाँ पर हम सिंबल्स यूज करते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये समझने के लिए डायरेक्ट है ना, वहां से गूगल से, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट करके मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये देखिए इक्वेशन 1 ऑटोमेटिक इसकी नंबरिंग आ गई है 1, fn इक्वल टू n की पावर 5 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2 5 n इक्वल टू 17 तक के लिए ये इक्वेशन हमारी डिजाइन। अब इसके देखो सिंबल देखिए कितने ब्यूटीफुली तरीके से डिजाइन होके इसके सिंबल्स यहाँ पर आते हैं। जैसे हम कुछ और इक्वेशंस भी लेते हैं, यहाँ से सीधा मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ टाइप करने की जगह, वी हैव अ वेरी लेस टाइम, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन अगर मैं लेता हूँ, टेस्ट टू इक्वेशन, ये देखिए सेकंड नंबर की इक्वेशन आ गई है। फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल के n-1 फैक्टोरियल टू ब्रैकेट में n टू k, ओके। इस तरीके के हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की इक्वेशंस हैं वो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स की इक्वेशंस हैं वो यहाँ से हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर विकिपीडिया में सारे सिंबल्स का इसके जो है ना कोड दे रखे हैं कि किस सिंबल को कैसे रेफर करना है हमें।
इस तरह की अगर हमें टेबल डिजाइन करनी है तो इस तरह से हम मैट्रिक डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके इक्वेशंस के लिए यहाँ पर मैं आपको यस, मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको थोड़ा इसको फास्टली इसको कवर कर सकता हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर, थैंक यू, है ना। यहाँ देखिए आप, जैसे ये सिंपल इक्वेशन है तो बिगिन इक्वेशन इस तरीके से लिखता है, बिगिन एंड इक्वेशन के बीच में इक्वेशंस को लिखना होता है, तो इस तरह से वो डिस्प्ले होकर आएगी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने बता रखा है कि इनपुट क्या होगा तो आउटपुट में किस तरह से विजिबल होगा। इसका लेबल दे रखा है इक्यू कोलन एडिशन, ताकि पता चल जाए कि जब हमें अगर फ्यूचर में इसको क्रॉस रेफ में इस इक्वेशन को यूज करना पड़े तो किस तरीके से हम इस लेबल का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरी इक्वेशन है, इसका इनपुट है एक्स कैप 2, कैप मतलब जिसकी पावर में आ जाएगा, इक्वल टू वाई कैप 3 प्लस जेड डैश 7, है ना, ये बॉटम के लिए। तो जेड यहाँ पे इसके जो है ना सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, इसके लिए एक कैप और जो है ना वो डैश, है ना, अंडरस्कोर इसको बोल सकते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको ये देखो इनपुट इस तरह से लिखते हैं तो आउटपुट इस तरीके से होगा। अगर एक से ज्यादा डिजिट है तो आपको कर्ली बेसिस में लिखना होगा, तभी जाके उसके सब स्क्रिप्ट में आएगी, है ना। अदरवाइज तो अदरवाइज आपने नहीं लिखा तो ए डैश, तो यहाँ 8 तो सब स्क्रिप्ट में आ रहा है, देखो ए डैश 83, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। अगर मैं कर्ली बेसिस में कर देता तो दोनों ही यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में आते हैं। ये फैक्टोरियल के लिए इक्वेशन है वो तो इस तरीके से होगी। ठीक है, दिस इज द नो नंबर इक्वेशन। अगर यहाँ एस्ट्रिक लगा देते हैं बिगिन इक्वेशन के बाद यहाँ पर एस्ट्रिक लग जाता है तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन का नंबरिंग नहीं आएगी। जैसे कई बार होता है ना कि इक्वेशन को लिखना चाहते हैं लेकिन नंबरिंग नहीं देना चाहते इस इक्वेशन की, तो इस केस में आपको यहाँ पर एस्ट्रिक इंसर्ट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लेबल्स के कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ये फिक्स नहीं, आप कुछ भी यहाँ लेबल में इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन EQ, टेबल, फिगर, सेक्शन, अगर इस तरह से आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेबल किसको बिलोंग करता है, इक्वेशन को बिलोंग करता है कि टेबल को बिलोंग करता है कि फिगर को बिलोंग करता है कि सेक्शन को बिलोंग करता है। तो लेबल इस तरह से होने चाहिए कि बाद में आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहे। ये ऑलरेडी, अच्छा, जैसे अगर आप चैप्टर लिखते हो तो चैप्टर का भी लेबल दोगे, सेक्शन का भी लेबल देते हैं, सब सेक्शन का लेबल देते हैं, तो बाद में उसको हम रेफर कर सकते हैं। ये इसमें बताया रखा है यहाँ पर। अगर आप डॉलर के बीच में, अगर आप बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज नहीं करना चाहते तो डॉलर के सिंबल के बीच में भी अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो वो भी इक्वेशन की फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉलर के फॉर्मेट में एस कैप 2 इक्वल टू 1/n-3 लिख रहा हूँ, तो इस तरह से डिस्प्ले में वो क्या आता है जब कंपाइल करने के बाद जो हमें नजर आएगा। तो ये सारा इक्वेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर एनी प्रॉब्लम गो टू गूगल। ओके, गूगल में सब कुछ है। और आपके लिए असाइनमेंट भी है स्लाइड में, इस सारी इक्वेशंस को आपको बताना है कंपाइल करके कैसे ये इक्वेशंस आप डिजाइन करते हो। दिस इज द असाइनमेंट। नाउ एडिंग फिगर्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे तो पैकेज आपको जो यूज करना है वो आपको यूज करना है ग्राफिक्स। ओके, उसके बाद बिगिन फिगर और एंड फिगर, इसके बीच में आपको इंक्लूड ग्राफिक्स लिखना है। बिगिन फिगर और एंड फिगर में इंक्लूड ग्राफिक्स। ओके, ये इंक्लूड ग्राफिक्स आपको यहाँ पर लिखना है। देन कैप्शन, उसके बारे में फिगर का कैप्शन, और लेबल। लेबल आपका काम आएगा क्रॉस रेफ में। ओके, ये आपका आ गया बिगिन फिगर एंड फिगर। वही इंक्लूड ग्राफिक्स, स्केल इक्वल टू 0.3, उसकी विड्थ, हाइट, ये सब कुछ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पर फिगर कर सकते हो यूज। फिगर्स ये जो है ना EPS फॉर्मेट सपोर्ट करता है। EPS फॉर्मेट सपोर्ट करता है तो आपको PNG, JPG के जो भी फॉर्मेट के फिगर्स होते हैं पहले आपको उसको EPS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और EPS में कन्वर्ट करने के लिए या तो कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा या फिर ऑनलाइन। आप सीधा ऑनलाइन जाइए किसी फिगर के लिए और वहाँ क्या लिखेंगे आप ऑनलाइन, कन्वर्ट है ना, EPS सॉरी PNG, मान लो आपके पास PNG में इमेज है, PNG टू EPS। इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी, जैसे ये हो गया फ्री कन्वर्ट, ये वेबसाइट अवेलेबल है। सीधा आप क्या करोगे, अपनी फाइल को यहाँ चूज करके अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड के लिए दे देगा कि EPS फॉर्मेट में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकती हो। तो PNG टू EPS कन्वर्टर, JPG टू EPS कन्वर्टर,
ऐसे कई सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पर जाके आप आसानी से अपनी इमेजेस को ईपीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक्सेल से ले सकते हो फिगर को, ठीक है। एडिंग टेबल्स, मैं आपको ऑलरेडी टेबल्स के बारे में बता चुका हूँ। फिगर हो गया, इक्वेशन हो गया, टेबल हो गया। अब जैसे जैसे जो है वो इस तरह की कोई टेबल आती है, जैसे सारे इसमें कॉलम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट कॉलम है वो इस तरह से आ रहा है किसी टेबल में, है ना, तो क्योंकि पूरा स्पेस नहीं कर पाए तो हम यहाँ पर टेबल कॉलम्स की साइज को भी लिमिट कर सकते हैं इसमें, इस तरीके से। जैसे पैराग्राफ 5 सेंटीमीटर पैराग्राफ में इसको डिस्प्ले करना है, तो उसका टेबल का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका विजिबल होके आता है। एक टेबल की स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्रिएटिंग फ्रॉम। हेडिंग रेफरेंसेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर, सेक्शन, सबसेक्शन, पेपर राइटिंग, तो it is all from my side, and the last one is the learning by doing. जितना आप खुद से करोगे उतना ही आप इसको सीखोगे। तो थैंक यू। Thank you, sir. 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 Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. May I leave the session?